Hello everyone, welcome again to NBT. Today with us we have Naval Veteran Lieutenant Commander Sir Vijay Nair. Welcome, sir. So, sir, please give us perspective about your background and like how did you actually jump into this naval thing? In fact, the entire army thing. I have a very interesting childhood. I was born and brought up in Mumbai, though Mm-hmm. my parents are from Kerala. Mm-hmm. Uh, so when I say interesting background, because I was born and brought up in Mumbai slums. So Slum like the Dharavi kind of slum that we are aware of. uh, Dharavi is a much broader slum where we were much better. But then slums are slums always because your house is uh, So, could you give us a perspective? Better slum and Dharavi bigger slum. We okay. would like to So know. slum may there are many types of slum. Mm-hmm. In Mumbai we call Chopatpatti. Chopatpatti is something which is made of a temporary structure. Okay, There is a tin wall and all. noted. But the place where we stayed, it was a concrete structure. Okay, so tier one. Tier slum. 1, tier 2, जो भी आप बोलो. So it was in Mumbai parlance we say it as chawl. Chos. CHAWL. And we had 150 square feet. Our house was 150 square feet. Okay. It was difficult. It was difficult because very recently, a couple of years back, when I took my daughter when she was uh, to my place there where we used to be, and the first question she asked first time when she entered that place was, "Where's the house?" Because it starts and ends. And फिर आप भी बड़े हो स्टाउट हो फिर आप हम कहाँ लोग फिट हुए हम लोग interestingly, we were my three siblings and father, mother. And at point of time, my uncle also used to live with us. हाँ मैं In that house, 150 square, 6 people. Mhm. But trust me, today, like I live in a gated community, I have about 1,000 square feet plus. But the happiness which you used to get those days, that happiness factor thoda hai, but eventually क्या होता है life में, we have to grow up, Yes. That is why we call it as continual improvement. You cannot Continual be improvement. continual Yes, improvement. That's yes. a word which we use a corporate jargon though. But it makes sense to everybody. Exactly. And नहीं तो फिर क्या मजा है? Hmm. एक हिंदी में कोट है which I always use is that कहाँ पैदा होना तो आपके हाथ में नहीं है. Okay. Yes. कहाँ फिर मरना है वो आपके हाथ में है. सर वो भी अपने हाथ में है क्या मतलब when you grow up कहाँ पे कैसे? Because I was born in Chawl and मुझे वहाँ मरना नहीं था. ये था कि यहाँ से उठ के कहीं जाऊँ. A better place where for us it was very important. जो the very basic amenities जिसको बोलते हैं ना टॉयलेट, which is a very basic requirement घर में होता है, वो नहीं होता था हमारे पास. तो करते कहाँ थे We used to go for community toilets जो होते बॉम्बे में. So community toilets are 12 houses and then you have couple of Oh. So आपके विश पे कुछ नहीं होगा. तो उसमें भी क्यों लगा रहेगा विश में मोबाइल फोन लेके बैठते you spend half an hour 45 minutes those days. Nature had to wait for the for your turn to come. It would be like someone would be abusing you 5 minutes से ज़्यादा है. अंदर सो रहा है क्या करके ना. So those days. So yeah, life was not easy, but my father was a taxi driver earlier. When he came to Mumbai, he started his career as a taxi driver. So he was the first person to move to Mumbai from Kerala. Yeah. And then he was promised some better job by his friend, and when he landed here, there was no friend to be seen, and that is how his journey began. So real Mumbai taste कर लिया. Mumbai taste कर लिया. Yeah. But hats off to him, he never gave up. He, where he could have gone back to his hometown, and he was from a good business family, but he never. So I appreciate him for that. And then he realized कि यार taxi driver तो हम lifelong नहीं बन सकते. That's how he got trained for being an electrician. Okay. And he's an electrician, and later he worked for 35 to 40 years in the same place where he was. As electrician or as a driver? As electrician. Okay. As electrician. So he shifted his base. I mean, like the industry. Yeah, थोड़ा taxi से better. Salary was not that great, but in that bargain क्या हुआ कि वो union leader बन गए. Okay. Okay. Typical. अब मजा आ रहा है कहानी. Typical Malayali. And union leader बनना, then comes lot of things with that. Those days it was really tough. Pre-globalization, where jobs बहुत कम होते थे. 91 से पहले का बात कर रहे हैं. 91 के पहले का. And then मारामारी every day. He belonged to some union. मारामारी अच्छा. Union अच्छा. And that's how my uncle lands. He come from Kerala. तभी होते थे ना आप कोई भी एक
बॉम्बे में आ जाए तो 4 लोग को साथ में लेके आएगा. हम्म So my father brought my uncle अंकल and one more person. ऐसे 2 लोग आए. हम्म Everything was good. He was educated, decently educated. And then when he started, तो हमारे घर आके he stayed with us. in that 150 square feet 150 square feet. one more added One more added. Uh. Very funny thing, but वही है कि अभी सोचते हैं ना, अभी सोचते हैं यार कैसे हम निकाल लिए लाइफ के 22 years. And so he was same place where my father used to work. उनको नौकरी वहाँ मिल गया in some other maintenance department or something. Everything was fine till one day, because Bombay of pre-90s and 90s was fully infested by gang wars. हम मूवीज में देखे हैं Movies में आपने देखा होगा, हमने तो real life में, because and the suburb where I come from, it's called Bhandup. भांडुप ये वर्ड भी हमने सुना है मूवीज में Movies में सुना हाँ वही भाई लैंग्वेज भाई वाला में भांडुप language. कुर्ला ये सब बोलते फिरता है Bhandup, Kurla, हाँ Kanjurmarg. हाँ This where gang rivalries के लिए famous थे. Dawood and Arun Gowri, Chota Rajan, all big names. And then there were small gangs everywhere. Everyone used to feel proud कि I am associated to some gangs. ओके तो प्राइड मोमेंट होता है ना, वो कल्चरल नॉर्म बन गया उस एरिया का कल्चरल नॉर्म एंड दैट मैचोइज्म बता हाँ, देती हाँ, है, आई बिलोंग टू सम गैंग टाइप. हम्म, एंड व्हाट हैपेंड वाज ही वाज अ वेरी डिसेंट गाय. रोड से जा रहा था एंड दोस डेज कैसे आपको ऐसे धक्का भी लग गया हम्म, तो समवन विल अरे दिखता नहीं है क्या, एंड देन यू कैन नॉट सी आई टू समवन. क्या अगर मैंने ऐसे हो- देख लिया तो 30 सेकंड से ज्यादा मैंने आपको देख लिया ऐसे, हाँ तो सामने वाला बोलेगा अरे क्या देखता है करके, यू नो, ओके आई विल पुश यू. ओके तो क्या समझ- एस्केलेट हो जाएगा बड़ा हो जाएगा दैट वाज अ टिपिकल थिंग. मुझे धक्का क्यों मारा, इंटरेस्टिंग मैन मुझे धक्का क्यों मारा. इंटरेस्टिंग मैन And then इंटरेस्टिंग सर इसलिए क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पीसफुल प्लेस it's- सब शांति हेलो हाय सर आगे बढ़िए नहीं, वही मैं दिखा आज, यू नो, लास्ट कपल ऑफ डेज आई एम हियर. लास्ट पीपल आर सो पीसफुल. Yeah, we are. वहाँ तो एकदम. आहा, And another aspect was those days अगर आपने कोई लड़की से बात किया, you know, there would be some gangster या कोई टपोरी टाइप होगा. टपोरी is a हिंदी word. ना हमें पता है पता है. हाँ आप बोलिए ऐसा उधर बंदा होगा and he would be liking some woman. ओके ठीक है बोलेगा कि ऐसे ईयर मार्क कर दिया होगा आई लाइक हर, अच्छा एंड गॉड फॉरबिड किस कोई और बात किया उससे, जस्ट फॉर यू नो, अच्छा, उनको पता भी नहीं है पता भी नहीं होगा, बोला बुक दे दे या हाउ आर यू करके, देन वो लड़की जाने का ही आएगा, बोलेगा तूने उससे बात क्यों किया, अच्छा वो तो मेरी लड़की थी करके. एंड लड़की को अवेयरनेस है ही उसको नहीं मालूम भी नहीं. किसने उसको ईयर मार्क कर लिया एंड देन वन सच डे ही वाज बीटन बाय कपल ऑफ goons. यो चाचा And young guy, you know, he was gymming and all. So इससे रहा नहीं गया. So he retaliated. ओके ऐसे कैसे मुझे मार दिया टाइप. And by the time he came to know, it was too much. Then their people came, बहुत मारे. वो Left, अकेला था right, चाचा जी अकेला अकेला था. था Left, right, center मारा. घर पे आ गए and then you know like he also said छोड़ दे. But ego, ये young ego होता है ना, ऐसे कैसे मार दिया टाइप. That is how उनके जिम के भी सर्कल के फ्रेंड. Then he went into you know the wrong side. बोला कि मुझे मारा मैं भी मारूंगा. तो लाइक गैंगस्टर तो someone said क्या जा तू, हम लोग तेरे को सपोर्ट करते तो हैं, मारो उसको. रिक्रूटमेंट हो गया Recruitment, the first affiliation, and then there was no setback. A very nice guy, very kind-hearted, and you know very. तो ये चाचा Yeah. मतलब गैंगस्टर थे Yeah, so he. गैंगस्टर बोल सकते हैं ना No, he was. ही वाज So yeah, so growing up in such scenario, I saw the machoism. I saw घर पे तलवार, sword, वो गन लाते थे कभी-कभी. गन भी Later- लाइसेंस हुआ नहीं नहीं लाइसेंस तो नहीं, अच्छा वो सारे अच्छा देन हॉकी स्टिक्स होते थे. हाँ बिकॉज तभी ऐसे था कि ना आपको कोई भी आके मार देगा टाइप्स. स्टॉल है तो इट इज लाइक देयर आर सो मेनी हाउसेस टुगेदर, 12-13 हाउसेस, एंड देन बीच में एक लेन होगा, ये साइड 10-12 ये घर होगा. Someone would be running through and all, you know, small place. So everyone used to keep something for protection those days. And then there were communal riots also, Hindu-Muslim, Hindu-Sikh, 84 and 92, Indira Gandhi wala assassination, and then the Babri Masjid. Those days we had tough time. People getting killed left, right, and center. जहाँ मैं रहता था, it was सारे community होते थे, but predominantly one community was more. तो either they used to target or they used to become targets. Similar, सब जगह जो होता. I've seen one of those guys being burnt alive.
वो इतना ट्रॉमेटिक, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक बिकॉज यू नो वी वर व्हाट 92 बोला 10वीं में, आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. So all those things, so growing up in such scenario was tough. And then हमेशा ये था कि he was my idol. मुझे ऐसा था कि Gangster चाचा जो. गैंगस्टर ही बनना है, because you know the power which comes, the Machoism, of course. वो आप कैसे पता, and he was having biceps and all, good gym. आपका भी ठीक ठाक हाँ, ठीक मेरा ठाक है, बढ़िया है, biceps. inspired by him. मैंने तभी 10वीं में जिमिंग सब स्टार्ट किया था उनको देख के. हाँ. But what happened was in 97, I still remember I was in 3rd year of engineering and from college. से घर weekend था, Friday or something. I was coming back from hostel. Okay. तो मेरा 100 किलोमीटर है कॉलेज. आप इंजीनियरिंग किए हो? इंजीनियरिंग. Okay. I was coming to पेपर में, दोपहर का जो पेपर होता है ना, ट्रेन में सब लेके बैठते, तो उसमें ऐसे था कि कोई गैंगस्टर को मार दिया, 2-3 लोग को मार दिया आज करके. यही तो होता है ना, मैं सुपर पावर की हमेशा बात करता हूँ. मुझे ऐसे इंट्यूशन था कि यार शायद चाचा तो नहीं होगा, शायद. द मोमेंट आई अराइव एट दोस डेज मोबाइल वगैरह नहीं होता था. हाँ. स्टेशन से उतर के जैसे घर क्यों आया तो पूरा भीड़ भाड़. Then I go there, I come to know that he's been shot. Oh my God. By a rival. Oh my gang. God. So that time 3 people were killed. पूरी गोली लगी थी. उसको AK-47 से मारे थे. कौन सा, क्या एज था? He died at 34. Died young. Died young. That is the time I realized भैया ये सब नहीं. And my mother always kept shielded. Because police का आना जाना was very common. Dad was union leader and चाचा ऐसे. Tough time to grow, and thanks to my mother, the strong lady, who ensured that you know education is the only thing which will uplift you. So I come from a background where you know. अब पिक्चर मिल गया हमें तो पूरा. और एक learning, I won't regret, मुझे कोई regret नहीं है उसका कि ऐसे, because it's always learning, you know. तो सर नेवी में, आर्मी में जंप कैसे किया? मेरे को वो कहानी का वेट कर रहा हूँ मैं. How did it all So start? हमारे ज़माने में I don't know whether you remember because you're 39, 9 साल छोटे आप मुझसे. हमारे ज़माने में एक सीरियल आती थी, फौजी, शाहरुख खान. हाँ. हाँ, of course. And that was the biggest change which happened. And हमारे वहाँ तभी privilege नहीं थे, टीवी चैनल्स वगैरह. We had only 2 टीवी चैनल्स. पूरा चोल में. केबल टीवी आया नहीं था. हाँ, केबल टीवी तो बहुत लेट में आया. It was about to come. So DD1, DD2 ऐसे 2 चैनल. And one serial used to come other than Ramayana, Mahabharata and all. There was this serial called फौजी. हाँ, of course. शाहरुख खान का पहला अपीयरेंस था. वो पहला ऐसा चैनल था जो फौज के बारे में कुछ मेन स्ट्रीम बताया कि अच्छा ऐसे होता है. Okay. I got inspired, very inspired by the. आपने सी हॉक्स देखा था? समंदर. हाँ, समंदर वाला सी हॉक्स. हमने तो देखा है. हाँ. ठीक है. And then एक उड़ान बोल के. उड़ान भी थे, लेडी. She just passed away, I guess. Okay. So that फौजी motivated, and then फिर ऐसे था ना कि यार बंदूक तो पकड़ना है, कहीं तो पकड़ना है करके. And that is how the quest happened. And then the thing started for finding out how to join Army, Navy, Air Force. हाँ, अभी तो आपका कहानी सुन के लगता है तो यू आर ब्लैंक. कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या है. छोटे स्कूल से आते हैं, सब कुछ छोटा ही था लाइफ में, है ना. Then very interestingly, जहाँ मैं रहता हूँ, I stay very close to a naval colony. वो आपका चौल? हाँ, जो मेरा चौल है, हाँ. that is very close to a naval colony. Hardly a kilometer दूर पे naval civilian colony है. Okay, okay. कांजूरमार्ग बोल के. Okay. And उसका perimeter is huge. And वो perimeter पे पूरा slums और you know chawls है. And we belong to one of those chawls. And इनकी खासियत क्या थी कि they had huge grounds, they had amenities, they had auditorium, they had swimming pool, they had everything. And हम लोग जो बाहर वाले थे, हमको ये जलन होती थी कि इतने बॉम्बे में ऐसे स्पेस क्रंच में दिस गाइस है वो डबल साइज का क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड एंड ऑल. तो हमको भी खेलना है करके. वो यंग क्रिकेट वाज द यूनिवर्सल रिलीजन फॉर ऑल ऑफ अस. तो हम वीकेंड अंदर जाते थे. जाने मिलता था लाइक हम लोग ट्रेसपास करते थे. सिविलियन कॉलोनी थी, तो जैसे नेवल यूनिफॉर्म कॉलोनी नहीं थी, नेवल सिविलियन कॉलोनी थी. तो नेवल सिविलियंस आती. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन नेवी: यूनिफॉर्म पर्सनल ऑफिसर्स, देन अदर मेन जो नॉट ऑफिसर वाले रैंक, एंड देन सिविलियंस. सो नेवल सिविलियंस आर also personnel from Navy, but they are not regulated by uniform का rule. Okay. They are like a civilian. तो प्रोटोकॉल थोड़ा सा हल्का है. हल्का है. तो इनकी कॉलोनी है, नेवी गवर्नमेंट की कॉलोनी.
तो वी यूज्ड टू नो कहाँ से अंदर जाना है करके। और एक बार आप अंदर पहुंच गए तो इतना बड़ा है तो then surprisingly there used to be this provost around, provost आती नेवल पुलिस, Okay. नेवल पुलिस का राउंड होता है, उनमें एक फोरमैन होता है वहाँ का इंचार्ज। फोरमैन इज द इंडस्ट्रियल रैंक, ऑफिसर है, हाँ एक जो बोलते हैं ना सिविलियन ऑफिसर, सिविलियन ऑफिसर है। उसको इंचार्ज, और बहुत खड़ूस बंदा हो। ओके, उसका काम ही था स्लम्स वालों को पकड़ना। अच्छा अच्छा। एंड वन डे वी गॉट कॉट, एंड वी गॉट, वी वर लाइंड अप बाय द सेम पर्सन। वन डे जो आप यू गाइस वर कॉट, उससे पहले कितना बार आप गए? ना तो वही मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हम लोग महीने में अगर आप सैटरडे संडे लगा लो और हाँ, बाकी के हॉलीडे हाँ। ये वो सब, एटलीस्ट एक दो महीने में 20 बार तो हम चले जाते थे। तो सक्सेस रेट तो बहुत हाई है। सक्सेस रेट होता है, एक हाँ। बार पकड़े गए तो क्या है? and that changed like my life, होता है ना सुपर पावर। So everything has something or the other connected to you। तो जिस दिन पकड़े गए ऐसे खड़ा किया, and then comes a naval gypsy, उसमें से एक नेवल प्रोवोस्ट पुलिस है, वो हाथ में डंडा नेवी का, you know, white socks, white shoes, white pant, white buckle, फिर आप ऊपर आओ तो मेडल, epaulets, golden आपका epaulets, तो आंख आप and Ray-Ban also ऊपर और से एक those days, फिर एक टोपी, and I was pretty impressed। मुझे होता नहीं कि पहला नजर में प्यार होना, somewhere it stuck कि यार यही करना है करके लाइफ में। That's the power of visualization। मैं सबको बोलता हूँ ना, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना, अगर मैं कभी एक जमाने में मैं सोचता था कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दूंगा, तो मेरे लिए विजुअलाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग। दैट डे आई विजुअलाइज समडे दो चीजें विजुअलाइज की होगी, एंड ट्रस्ट मी, यू नो, टचवुड। वन विजुअलाइजेशन वाज यार कभी तो ना ऐसे उतरेंगे यही ग्राउंड पे, ऐसे उतरेंगे ऐसे हीरो एंट्री। हाँ हीरो एंट्री, हाँ। सोचा ऐसी कैजुअली बोला कभी तो उतरेंगे। सेकेंड थिंग वाज कि वो जो फोरमैन ने हमको पकड़ के किया था ना ऐसे स्टैंड शर्ट बिटने का, मतलब माँ कसम ये कभी हाथ में आ गया लाइफ में, बिकॉज गैंगस्टर वाला इंस्टिंक्ट तो था, इसकी ले लेंगे करके। एंड ट्रस्ट मी, सी बोथ हैपेंड एग्जैक्टली 22 इयर्स लेटर। मुझे वो दूसरा कहानी में इंटरेस्ट है, वो फोरमैन वाला सर के साथ क्या हुआ फिर? सो हाँ, तो पहला नेवी वाला तो था कि you know, एक दिन नेवल यूनिफॉर्म में वहां से आना था, तो मैंने बोले चलो अंदर से डिटूर लो, अभी तो ऑफिसर थे। हाँ, देन एग्जैक्टली वही ग्राउंड पे वही वैसे ही उतरे, जस्ट टू यू नो फील दैट मैं भी आई बिलोंग टू। नाउ अगेन द सुपर पावर, सी नेवी सो ह्यूज, 3 कमांड्स है, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, यू नो ईस्टर्न कमांड, फिर अंडमान है, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी आ सकती है। अब वो होता है ना इंटरवेंशन। सो माय थर्ड पोस्टिंग केम इन नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे। ओके। नेवल डॉकयार्ड इज अ इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर नेवी, जहाँ शिप रिपेयर वगैरह होता है। इसी के वर्कर्स वहाँ रहते हैं ओके कॉलोनी में। ओके, तो मेरा पोस्टिंग यहाँ आ गया। वही कॉलोनी जो आप बात कर रहे हाँ, थे। जो कॉलोनी वहाँ के वर्कर्स जो है वहाँ रहते हैं। और फिर नेवल डॉकयार्ड में भी 10,000 लोग काम करते हैं, देयर आर 100 वर्क सेंटर्स, 101। तो मेरी पोस्टिंग जब मैं वहां गया तो बोला कि ओके यू विल बी पोस्टेड टू दिस वर्क सेंटर, दैट वर्क सेंटर वाज 101। ओके, मैं बोला ठीक है यार करके। आई वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज कोर इंजीनियरिंग नहीं था, बिकॉज यू नो आई बिलोंग टू कंट्रोल्स, इट वाज अ मल्टी स्किलिंग सेंटर। वहां गया एंड फर्स्ट डे माय बॉस देखा 300-350 पीपल। माय बॉस, देयर इज अ इंट्रोडक्शन सेरेमनी नेक्स्ट डे, सिविल यू नो ऑल वर्कर्स स्टैंड इन ऐसे पूरा उसमें, और आप खड़े रह के ही विल इंट्रोड्यूस कि ही सो एंड सो करके सबको? हाँ सबको, सब लोग ऐसे मस्टर में खड़ा रहे। ओके, सो आई वाज एज असिस्टेंट मैनेजर, आई वेंट देयर एज अ लेफ्टिनेंट, माय बॉस इज इंट्रोड्यूसिंग मी, एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग एंड दे से कि इज लेफ्टिनेंट, तो मैं लेफ्टिनेंट विजय नायर, ही विल बी जॉइनिंग। तो नायर इज अ मलयाली नेम, तो उनको लगा कि मैं कोई साउथ इंडियन हूँ करके, जो हो एक्चुअली, जो मैं साउथ इंडियन टेक्निकली तो हो, टेक्निकली बिकॉज़ दे आर ऑल महाराष्ट्रियंस, एथनिकली साउथ इंडियन हो आप। टेक्निकल। हाँ, तो उनका एक ये होता है ना कि द मोमेंट आप साउथ इंडियन बोले दे टर्म इज मद्रासी, ये रह चुका है। एंड उनका ये था कि ये क्या करेगा, देख लेंगे इसको। सो दिस फर्स्ट स्पीच आई गेव ऑन दैट डे वाज इन मराठी। द मोमेंट आई सेड मराठी, आधा लोग वहीं फ्लैट हो गया, ये तो अपना बंदा निकला। So they were very happy. Then I said, I belong to such background, and I see this foreman in charge standing there. You spoke about your gangster background. हाँ, I said कि मैं यहाँ से belong करता हूँ, आपकी जो बाजू चोल से आया, आपकी जो कॉलोनी है मैं वहीं से उसके बाजू में। And then I see this foreman. He was there. And my boss introduced that he is the foreman in charge here.
I आपको was like, पहचाना ना? हाँ मैं पहला पहचाना, वो पहले नहीं पहचानी। मैं बोला माँ कसम, इसको बोलते हैं ना कोइंसिडेंस, यही तो मैं चाहता था करके। And he was standing, a very rough and tough guy. बाद में he taught me so many things in life. And my Okay. ego was so strong, young guy, you know, like Yeah, 25 तभी था, 25, 26, and फिर आई हैड अ केबिन, बड़ा सा केबिन था, जितना मेरा घर कभी बड़ा नहीं था उतना केबिन था। एंड यू नो सो मेरा ये था, इसको मैं कब बुलाऊं केबिन में ना, आपको तो लेना है उसका। और इसको तो लेना ही है करके तड़प रहा था ऐसे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मस्टर ही वाज इग्नोरिंग, तो मैंने उनको बोला साहब ऐसे ऐसे। उस दिन भी उसने कुछ नहीं बोला। थर्ड डे आई ओनली आस्क्ड हिम कि कम एंड मीट मी करके, डू यू रिमेंबर मी? तो ऐसे करके बोलता यस, मतलब कम इन माय केबिन एंड मीट मी। हाय। तो द फर्स्ट सेंटेंस आई टोल्ड हिम वाज कि मराठी में ही ओळख रहा था मुझे, डिड यू आइडेंटिफाई? ओके यस, यूज्ड टू स्टे देयर एंड मैंने आपको दोज डेज आपके कपड़े भी निकलवाए थे करके। मैं बोला यार इतना गट्स। एंड ही सेड नाउ सर, नाउ यू आर माय बॉस, नाउ यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन, अभी संडे को आओ क्रिकेट खेलते हैं सर करके। मैन, एंड माय ईगो जस्ट यहाँ से ऐसे गिर गया। बोले सर मैं मेरा ड्यूटी कर रहा था, अभी आप ऑफिशियली आओ सर, क्रिकेट मैं सिखाऊंगा आपको। ही इज अ क्रिकेट कोच आल्सो। And trust me, from that day, first thing is my ego just went down, and rest whatever time I spent there. He is a hardcore mechanical, foreman. So they are not engineers, but ITI diploma. वो इंजन का आवाज सुन के बता देते हैं कहाँ जाता है, ये है। They are so experienced, and I learned everything from him. यार ये कहानी मुझे बहुत बढ़िया लगा। आई मीन कहा, मैं भी वेट कर रहा था क्लाइमैक्स का क्या होगा, आपको पूरा पिघला दिया। पिघला दिया। मैं तो ऐसे था ना यंग, ले लूंगा करके, बिकॉज बट ही वाज स्पीकिंग फैक्ट्स राइट। उसने गलत क्या बोला? गलत कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मैं बोला। मेरा ड्यूटी कर रहा था। हाँ। अभी आप आओ, मैं आपको मैं सिखाऊंगा। एंड वी हैड सच अ ग्रेट रैपो। ही पास्ड अवे 3 years back, even ओहो। after I left Navy, ओहो। even when he got retired, we used to speak. And technically he made me very strong as an engineer, whatever BTech, post graduation, आप लोग जब तक आप काम नहीं करोगे हाथ से। आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो? हाँ, I have done my from the Navy, I did my मतलब specialization. तो आप एकेडमिक्स भी परस्यू कर रहे हो अदरवाइज? Otherwise, तो पीएचडी के बारे में सोचे हो क्या? PhD हुई आप लोग के साथ इंस्पायर्ड होके I was telling कि I have also enrolled तो PhD. आप स्कॉलर हो अभी, पीएचडी स्कॉलर हो? PhD स्कॉलर हूँ। अरे कांग्रेचुलेशन, So, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। कांग्रेचुलेशन से thank ज्यादा you. मुझे बोलना है कि अभी बहुत लंबा लाइन खड़ा। अभी लंबा। हम बता रहे हैं, हम I आपको know आपको it is tough. I know it is tough, but जिगर ये करके बोला चलो करते हैं करके। So yeah, that's life. सर, Interesting. आप नेवी में कैसे घुसे, कहानी आ गया। एंड अब तो आप सिविलियन हो, Correct. इंस्टाग्राम में हो, यू रन ए कॉर्पोरेट समथिंग। Yeah. मुझे जानना है कि नेवी छोड़े कैसे, एंड हाउ वाज दैट फीलिंग अगेन? लाइक आई वांट टू नो द इमोशनल पार्ट ऑफ इट। Exactly. So abhi, when that first incident happened with me, which I'll be narrating, I would tell to everyone who's listening to us, detachment is very, very important, whether you like it or not. I've seen my father working in a company for 35, 36 years, even today at the age of 80. आज भी बेचारे कभी कभी मूड आता है तो ही जस्ट बस में बैठ के जाते, कंपनी के बाहर खड़ा होकर उसको ऐसे ही देख। तो डिटैच नहीं हुआ? वो डिटैच नहीं हुआ, और हाँ। वहीं से फिर वापस देन वी से कि व्हाई यू वांट टू गो, इवन वो सिक्योरिटी वाला खड़ा नहीं करता एट द एज ऑफ, एंड so for me very incident happened. So as I said, my last posting was Naval Dockyard, and my commission finished on 3rd January 2009. Okay. Commission 14 years back. हाँ, so that means you have been civilian since last 14 years? Yeah, last 14 years. Okay. So but that first few days, first few months or weeks were so tough. So I was workaholic वहाँ पे भी 12, 13, 14 शिप रिपेयर यार्ड, यू आर बिजी। तो जब आपका जब रिटायरमेंट आता है या व्हेन यू आर अबाउट टू, तो आपको बहुत सारी चीजें वाइंड अप करनी है, बिकॉज आई वाज देयर इन दैट वर्क सेंटर फॉर 3 years, मेरे पर्सनल स्टाफ, आई हैव टू कंप्लीट लॉट ऑफ थिंग्स। तो लास्ट 2 दिन पहले भी काम ही कर रहे थे, आई एम अबाउट टू रिटायर। मुझे मेरे जो सीनियर था वहाँ पे बोला भी नायर अभी सब वाइंड अप करना चालू कर। अरे ठीक है ना सर, मैं यहीं तो बॉम्बे में रहता हूँ, मैं कहाँ जाने वाला। आई डिडंट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दैट वर्ड। एंड देन लास्ट डे मैं रिटायरमेंट के, और बहुत कुछ अधूरा रह गया था मेरा, केबिन बहुत कुछ लेके नहीं गया था, मैं वर्क कंप्यूटर ये वो। एंड देन द डे ऑफ माय रिटायरमेंट वाज ऑन 3rd January। पूरा फंक्शन है, सो देयर इज अ ब्यूटीफुल फंक्शन, दे ढोल बजाते,
they garland you and all. I was also garlanded and I was taken in a open lister बोलते हैं work industry में गाड़ी होती है. Hmm. I was ushered till the gate Hmm. and I handed over all my credentials, identity card and all. Then they came to my home in a एक vehicle में सारे लोग आए, बहुत सारे गिफ्ट थे, सब कुछ हो गया. मुझे तब तक रियलाइज नहीं हो, मैं गले विले मिल रहे हैं, फिर मैं सबको बोला कि मैं कल आता हूँ, थोड़ा लास्ट का वाइंड अप करेंगे और मैं सबको बता दूंगा क्या करना है. एंड देन वो लोग भी कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है सर आ जाएंगे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम टाइम आई बोर्ड नेवी का एक बस है जहाँ से मैं आता हूँ. Okay. तो मैं अभी सिविलियन क्लोथ में हूँ. Hmm. तो बस को बोला, तो बस पहला बोला कि सर अभी आप ऑथराइज नहीं हो बस में आना. Oh my God. एंड आई वाज लाइक यार कल तक तो आ रहे थे करके. हाँ तो नहीं, now 24 घंटा भी नहीं हुआ. 24 घंटे में 12 घंटा. बोला नाउ यू आर अ वेटरन सर. Civilian हाँ. but veteran. बट वेटरन. देन बोला कि ठीक है सिंस बट बाकी ऑफिसर्स थे, बोला चला जाना यार, बैठ जाते. लाइक दैट वाज द फर्स्ट शॉक. एंड जैसे नेवल डॉकयार्ड गेट पहुंचता हूँ, Hmm. इट्स अ फोर्ट्रेस बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजन. नाउ आई वांट टू गो इनसाइड. तो मैं वहाँ जाके, जो गार्ड मुझे हमेशा सल्यूट करता था, जय हिंद सर. For 10 no, हाँ. how many years were you there in I was dockyard? there for dockyard 3.5 years. So like the same person. आना जाना सेम पर जय हिंद. everyone used to knew me. वही बोलता है कि सर अभी साइड पे आ जाओ आप. ओके, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई यू. बोला यू नीड टू आइडेंटिफाई मी. बोला हाँ. सो देयर इज अ प्रोसीजर, फिंगर स्कैन, ये वो. And that was the time I felt so disgusted, but I also felt that this is the way of life. Trust me, I have to wait close to 45 minutes for all those process. उसके बाद भी I cannot go alone inside. Someone from my work center has to come, and junior officer who used to report me, he has to sign a visitor pass for me. And he was busy, he was not available for half an hour, he was in shifts. My God. So he comes, he signs, then 2 people come, then I go. Just a matter of 12 hours, आज एक दिन पहले. And मुझे रोना आ रहा था, आँख से पानी, why? But then फिर तो वो था कि I wanted to wind up very fast, because मैं बोला मैं कल नहीं आऊँगा करके. जितना भी important ये लेना था मैंने ले लिया. फिर my senior, we had lunch together all of us. When I said कि अभी कुछ भी छूटा भी होगा तो I'm not going to come. And it was very emotional, but then I realized that's the fact of life. आप जो detachment का बात बोला था, it fits so much. I mean, so befitting here. Yeah, very true. And then so उस दिन मैंने कसम खाई मैं वापस नहीं आऊँगा यार. But incidentally एक दो बार फिर officially जाना हुआ. So आपका कहानी में the foreman वाला story है, that exactly told us, at least from my understanding, कि duty क्या होता है. True. उसमें पर्सनल फैक्टर्स आता ही नहीं है. एंड देन व्हेन यू आर लिविंग, ड्यूटी क्या होता है. यू माइट बी हिज बिगेस्ट मेंटर, एग्जैक्टली, बट देन ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. तो वो करना पड़ेगा. ओह माय गॉड. सो दैट्स अ डिसिप्लिन आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस. एंड आई अप्रिशिएट दैट. आई we can talk for as long as you want, but then I myself want to limit any episodes within 30 minutes, so we don't have time, sir. Before we wind up, please इस कैमरा में देख के please youngsters को कुछ बोलिए please. So to all people who are watching, so this episode particularly, like Tei was so grateful and gave that opportunity to me, and we stuck to that one chord throughout. This talk was, otherwise talk can go for 2-3 hours, but we stuck to this chord called duty. So through this 2-3 incident, only thing was that whatever you do it dutifully, and that is what I want to emphasize. Life में बहुत सारे challenges आएंगे, but true to what you do, and and try detachment. Detachment is the ultimate way for attachment, जिसको बोलते हैं. Detachment is the ultimate way for attachment. Wow, sir. To detach from some place to attach to a new place. Wow, sir. That cycle should go. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, thank you. Yeah. So that was veteran naval officer, Lieutenant Commander Vijay Nair ji, and thank you very much. I'll see you again in the next episode.